اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حزب ہدایت ڈی پی او صاحب کو ایک میسج موصول ہوا تھا جس میں جنہوں نے مجھے فارورڈ کر کے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کڑی حیسور تانہ کی حدود میں مین روڈ پر ڈکیتی کی واردات کی کوشش شیخری پریشان ہو گئے ہیں۔ گزشتہ شب سپر نمبر 6 کے قریب 2 موٹر سائیکل نے غلام سمدانی نامی شیخری سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل نقدی اور موبائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن چشمہ ہائی وے پر رواں دوا ہیوی ٹریفک کی لائٹس لگنے پر راہ زن رفو چکر ہو گئے۔ اس سے قبل اسی ایریا میں ڈاکو نے اس ایریا میں کار پر فائرنگ کی۔ شیخریوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ سے اس علاقے میں چوراں اور رہزنوں کی کئی گروہ سرگرم ہیں، جن کی وجہ سے امن و امان صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں کیڑی حیسور تانہ آیا، ڈی ایس پی سرکل عالمگیر خان بھی ہمراہ ہیں، ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی، تفتیشی افسر رشید خان سر کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی، علاقے کے عامدین بھی کے ساتھ بھی اس سلسلہ میں ڈسکس ہوئی، گفت شنید ہوئی۔ ایس ایچ او صاحب کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل عبدالغفور نامی شخص کے ساتھ ایک وقوع ہوا تھا، جن کی بیان میں نے زبانی سنی کہ میں مٹھائی کا کاروبار کرتا ہوں، میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل پر پیچھے سے 3 بندے آئے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید ان کا کچھ ضروری کام ہوگا، تو ان میں سے ایک موٹر سائیکل سے اترا اور ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے موٹر سائیکل کو تیز بھاگا تو انہوں نے ایک فائر کیا، جس کے بیان پر جس کی رپورٹ پر مقدمہ درج رجسٹر ہو چکا ہے اور تفتیشی افسر تفتیش کر رہا ہے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن جس مدعی کے بیان کا جو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ اس نے مول مالے رکھے تھے، اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ اگر وہ ملزمان ایس ایچ او یا تفتیشی افسر گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائیں تو آپ ان کی شناخت کر سکتے ہو، تو اس نے کہا کہ یار مشکل ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے آج سے 3 دن قبل غلام سمدانی ولد غلام ربانی کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعہ ہوا ہے، نہ کوئی مال چھینا گیا ہے، نہ کوئی موٹر سائیکل چھینا گیا ہے، ہاتھ پائی ہوئی ہیں، 2 کسان تھے، اس کے ساتھ موٹر سائیکل تھا 125، اس کے ساتھ بھی اسی طرح واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ رپورٹ کے لیے نہیں آیا تھا۔ غریب گرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پنجاب گیا تھا وہاں پہ فصل کی کٹائی میں، آج بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تانہ میں، ان کی رپورٹ میرے خیال میں محرر درج رجسٹر کر رہے ہیں۔ تو ایس ایچ او صاحب کو سختی سے ہدایت ہوئی، تفتیشی افسر کو بھی سختی سے ہدایت ہوئی کہ اس گروہ کو کسی صورت میں بھی بے نقاب کرنا ہے اور انجام تک ان کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ انہوں نے ہمیں تو امید دیا اور 1 ہفتے کا ٹائم میں نے دے دیا کہ ان کو آپ نے کسی صورت میں بے نقاب کرنا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کے تعاون کا پولیس بھی آپ کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، عوام کا تعاون ضروری ہوتا ہے پولیس کے ساتھ۔ والسلام۔ سر جی، اس گروہ کو پکڑنے کے لیے پولیس کچھ قریب پہنچ چکی ہے یا اس کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ تفتیشی افسر کو ہدایت ہوئی کہ جتنے سابقہ ٹیوز ہیں اس ٹیوز کو ذرا ٹچ کریں، کیونکہ یہ طریقہ واردات جو ہوتا ہے وہ عام بندہ جو ہے روڈ کو نہیں آ سکتا ہے نا۔ انشاءاللہ الرحمن ٹیوز کا فہرست ان کے ساتھ ہیں، کچھ ٹیکنیکل طریقے سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے، کامیابی نصیب ہوگی، امید تو انہوں نے ہمیں دی ہے۔ سر جی، دوسرا ایشو یہ آ رہا ہے یہاں اس روڈ پہ جو درخت ہیں محکمہ جنگلات کے، آئے روز ہر ہفتے کے 1-2 دفعہ اس میں آگ لگائی جاتی ہے، ابھی تک پکڑا نہیں گیا، کوئی
अता पता नहीं है कौन लगाते हैं, इसके लिए भी कुछ ना कुछ पुलिस। इस सिलसिले में तो मुझे कोई अभी तक शिकायत मौसूल नहीं हुई है। सर जी मैं वजाहत कर जी देता हूँ। जी जी ये सिलसिले में फॉरेस्ट गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी ये ड्यूटी है। पुलिस गश्त भी होती है मगर फॉरेस्ट गार्ड भी होती है। इसके साथ साथ ये अराजियात हैं गन्ने की। अक्सर वही ज़मींदार जो गन्ने की वो आखिरी जो गंद होता है जिसको आग लगाते हैं, उसी से ये हवा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके है, हवा करीबी दरख्त होते हैं, गंद की वजह से उनको भी आग लगती है। असल कसूरवार तो उसके साथ वही ज़मींदार है जो सरकारी अराजी में अपनी अराजियों को छोड़कर, ये सरकारी जो रोड के साथ एक अपनी रोड की अराजी होती है उसमें भी ये गन्ने काश करते हैं और उसी की वजह से ये सारा मामलात होते हैं। क्योंकि इन जंगलात को आग लगाने से किसी और बंदे को कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस चो से अच्छा बंदा है, इस इलाके से वाकिफ है, रशीद भी वाकिफ है। अभी इन्होंने देखो ना मैसेज दिया 2 किलो 400 उन्होंने पकड़ दिए। ये जो वाक़यात हो रहे हैं सर जी शाम के वक्त हो रहे हैं ना सारे? तकरीबन शाम, उसने कहा कि 7 बजे 7:30 बजे और 8 बजे हुआ है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मसलन पुलिस जो है ना वो नौजवान जितने भी फिर रहे होते हैं तकरीबन मसलन ये नहर के करीब हुए हैं तकरीबन वाक़यात, तो पुलिस के दबाव से उन नौजवानों को मसलन उधर से थोड़ा सा हटा दिया। इस सिलसिले में सफ़ेद प्रचार में पुलिस मुकर्रर की गई हैं, सफ़ेद इंटेलिजेंस वालों को भी हिदायत की गई हैं, DSB वालों को भी हिदायत की गई हैं। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। देखो ना, ये हम बेटे हैं गरीबों के लिए, हम बेटे हैं गरीबों के लिए, गरीबों का मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और ज़ोरावर जो हैं वो तो अपनी वो सब कुछ आप खुद करते हैं ना, लेकिन हम मज़लूम के लिए बेटे हैं। मज़लूम की आवाज़ जो है अल्लाह की अर्श तक पहुँचता है ना। हम मज़लूम के लिए बेटे हैं और मज़लूम की मदद करेंगे और जालिम के साथ हमारा कोशिश है कि टकराव करेंगे। अब रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इसमें जो है ना आज खुद जो है ना वो खुद नोश की चीज़ें जो है ना वो महंगी कर देते हैं खुद ही। मसलन जैसे गोश्त हो गया उसकी 50-100 रुपये किलो के साथ जो है ना बढ़ा देते हैं। अभी ब्रेलर की भी कीमत इतनी है और जो बड़ा गोश्त है वो भी 600। आज मैंने सुना है कि प्राइस कंट्रोल पर मजिस्ट्रेट का उनका मेरे ख्याल में कोई इजादगी की है कि मजिस्ट्रेट जो 24 घंटे ये मंडी में मौजूद रहेंगे ना। हमारे पाड़पुर तक महदूद हो जाते हैं ना, यहाँ पे तो हमारा कोई पता नहीं होता। भाई आप निशानदेही करेंगे, जितना ताउन पुलिस से हो सकेगा उससे बढ़कर करेंगे, आपकी उम्मीद से बढ़कर करेंगे, प्राइस कंट्रोल में भी और दूसरे ये चोर चकारी में भी, जराइम में बेच करने में भी। ठीक है, ओके। जो प्रेस रिलीज़ चलाते हैं पुलिस का मौक़िफ़ उसमें ज़रूर लेना चाहिए कि भाई एक बंदा मेरे पास रिपोर्ट के लिए आ गया है, मैं ये प्रेस रिलीज़ चलाऊं या ना चलाऊं, इसमें हकीकत है या नहीं है। ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं इनको हमने जब उनसे पता किया है कि आप अभी तक थाने क्यों नहीं आए, तो थाने के लिए अभी वो रिपोर्ट लिख रहा है। जब हमें मालूम हुआ तो हमने उसको बुलाया कि आ जाओ, कि अगर आपके साथ वाक़या हुआ है कम से कम ये आप हमसे कर ले कि यार कि पुलिस के पास रिपोर्ट के लिए आया या नहीं आया। सर जी ये चीज़ तो हमने पहले की है, हम उसके घर भी गए हैं लेकिन वो बंदा बयान देने के लिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि गरीब बंदा था। गरीब है, उसका मामू पुलिस में ड्राइवर है। सर जी एक बंदा पुलिस वाले का भांजा है, रिश्तेदार है, उससे अगर वो पुलिस वाले भी रिपोर्ट नहीं करते तो और कौन करेगा रिपोर्ट। हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो अवाम तो अवाम है ना, ये तो पुलिस वाले का भांजा था कि वो रिपोर्ट के लिए ये था कि थाने से हाँ ये नहीं मेरी बात सुने, मुझे ये बता दें कि भाई आप जब से यहाँ पर बैठे और हम दरख्वास्त के लिए आए हैं और नहीं सुनी गई, मेरा मोबाइल 24 घंटे के लिए आना है, मेरा फेसबुक 24 घंटे के लिए आना है, मेरा व्हाट्सएप आवाम के लिए 24 घंटे के लिए आना है। हर बंदे को फर्दन मैंने अपना व्हाट्सएप दिया। कोई भी आपके इलाके में नहीं बताएगा कि भाई हमारे पास DSP का नंबर नहीं है। DSP का नंबर 24 घंटे है। वाक़या हो जाते वो खुद ना पुलिस को पास जाते हैं ना हमें बताते हैं। हम जब उनके पास जाते हैं तो भाई हमें बताएं, वो डरते हैं, हमसे भी डरते हैं, आपसे भी डरते हैं। हम क्या करें, वो अनपढ़े लोग हैं। सर जी डरने वाली बात ये है कि हमसे डरें वो जो क्रिमिनल है या क्रिमिनल बैकग्राउंड जो रखता है। जो शरीफ लोग हैं, ये थाना बना शरीफों के लिए, क्रिमिनल के लिए पुलिस बनी है। थाना शरीफों के लिए, क्रिमिनल के लिए पुलिस बनी है। कि हम अगर ये कह दें कि SHO साहब के पास मैं गया हूँ उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, मुहर्रर के पास गया हूँ रिपोर्ट नहीं लिखी, या रिपोर्ट लिखी है तो उसने मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैं 24 घंटे पहाड़पुर में मैं बैठा हूँ, सिवाय हफ्ते में 1 रात के लिए मैं जाता हूँ। 7 दिन में 24 घंटे मैं दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरा दफ्तर भी वही है और मेरा रिहाइश भी वही है।
एसपी साहब न होता तो मेरा दफ्तर है, मेरा दफ्तर न हो डीपीओ साहब का दफ्तर है, डीपीओ साहब न हो आरपीओ साहब का दफ्तर है ना, तो प्रॉपर चैनल सब होता है। थाने के बाहर एसएचओ का नंबर अवेजा है। सुबह डीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक 8:30 से लेकर 10 बजे तक एसएचओ अपनी कुर्सी पर मौजूद होगा। एसएचओ का सामने ये क्वार्टर थाने के अंदर मौजूद है, अगर उधर नहीं है तो इधर आपके पास मौजूद है। अगर कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, मेरा नंबर हर वक्त ऑन होता है।